آمین. ہم پاسٹر شہزاد کو ہم موقع دیں گے زور سے تالیوں کو بجاتے ہوئے. مسیح یسوع کے قوی قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں. آئیے ہم سب سے پہلے کلام حق میں سے پڑھیں گے 30 زبور اس کی دوسری آیت سے پڑھیں گے. یہاں پر یوں مرقوم ہے کہ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی. اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی. آمین. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریشانی، مصیبت، تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا سلوشن یا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس کا حل نظر آ رہا ہوتا ہے تب تک بے شک ہم خداوند کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. لوگ خداوند کی طرف خداوند سے التجا نہیں کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا حل، مسئلے کا حل نکل آئے گا. وہ کسی سے امید لگاتے ہیں کہ شاید اس مسئلے کا حل اس کے پاس ہے. اگر وہ بیمار ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اگر اسے نظر آ رہا ہے کہ اس بندے سے مجھ سے شفا ہو جائے گی تو وہ اس کی طرف رجوع لائے گا، اس کے پیچھے ہو لے گا، وہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے ہو لے گا. جب تک اسے نظر آتا رہے گا کہ اس سے مجھے شفا ہو سکتی ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا رہے گا. جب ہر در بند ہو جاتا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں رہتا ہے، کوئی ڈاکٹر علاج کرنے والا نہیں رہتا ہے، اس بندے کو تب خدا کی یاد آتی ہے، خداوند کی یاد آتی ہے. تب وہ خداوند سے کیا کرتا ہے؟ التجا کرتا ہے. خداوند سے التجا کرتا ہے اور خداوند سے فریاد کرتا ہے. خداوند سے فریاد کرتا ہے وہ دل سے، اور وہ اسے جھکتا ہے کہ خداوند میں بے آسرا ہو گیا ہوں، میں بیمار ہوں، میں بے آسرا ہو گیا ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں بے آسرا ہو گیا ہوں، اب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں رہا. تو جب ہم مصیبت سے تبھی وہ کہتا ہے کہ خدا میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی. تو جب یہی ایک ایسا ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، مصیبت میں خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کیا ہمیں شفا بخشتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے. اگر بیماری میں ہے تو وہ ہمیں شفا بخشتا ہے. تو کوئی آسرا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اس بات کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو اگر ہم شروع سے ہی مصیبت آنے سے پہلے یا مصیبت آتی ہے تو ہم خداوند سے ہی التجا کریں. کیوں نہ ہم انڈائریکٹلی اب جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی خداوند سے ہی التجا کریں. ہم خداوند سے ہی کہیں کہ خداوند ہم اس پریشانی میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں اس پریشانی سے نکال. ہم جب کبھی ادھر ادھر گھوم گھام کے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس سے کہیں گے شاید ہمارا کام ہو جائے، اس سے کہیں شاید یہ میری بیماری کو دور کر دے، اس سے کہیں گے کہ شاید اس رشتہ دار سے کہیں گے تو یہ میری پریشانی کو شاید میری بیماری کو دور کروا دے یا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال دے. لیکن جب کوئی آسرا نہیں رہتا ہے تب ہم خداوند سے کیا کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں. خداوند وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ہر بات کا، وہ ہمارے دل گردوں کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم چاروں طرف سے گھوم کے پھر اسی کے پاس آتے ہیں، کیوں نہ ہم شروع سے اسی کے پاس رہیں. جب ہم مصیبت میں اسی پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہم پر وہ کبھی مصیبت آنے نہیں دے گا. وہ بے شک ہم ایسے لوگوں کو جو بے شک اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس پر رجوع نہیں لاتے ہیں، ریگولرلی دعا نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مصیبت میں ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ بھی خدا سے دعا کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈیز وہ بھی خداوند سے التجا کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں اے خدا، اے مسیح، تیرے آسرا. وہ ایسا کرتا ہے. جب انسان کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اے یسوع تیرا ہی آسرا ہے، تو جو یسوع کا آسرا ہوتا تو پھر یسوع دعا سنتا. وہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے ہمیں سلوشن کوئی نہ کوئی پرووائڈ کر دیتا ہے. یہ ہمیں پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھا ہوگا ہماری لائف میں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم
परेशानी में घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हम क्या करें, घूम फिर के हम वहीं पे आ जाते हैं। और जब हम खुदावंद कोई ना कोई आसरा या हमें मुहैया कर देता है, कोई ना कोई जरिया पैदा कर देता है कि जिससे हमारी परेशानी हल हो जाती है। इसलिए वो जब उसी पर ईमान रखते हैं, मुसीबत में खुदावंद पर ईमान रखते हैं, तो वो ही हमारी परेशानियों का सलूशन हमें देता है। अब हम जब पुराने अहदनामा में से देखते हैं, खरूज 14 बाब 14 आयत से 14 आयत में उसमें लिखा है कि खरूज 14 बाब उसकी 14 आयत में खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। यहां भी देखें, जब इस्राएली मूसा के साथ निकलते हैं और आगे समंदर है, आगे बहरे कुल्ज़े में, पीछे फरौन लगा हुआ है, तो वो फिर वहां भी गिला करते हैं। वहां वो मूसा से गिला करते हैं कि बेहतर है कि बेहतर ऐसा ना था कि हम मिस्रियों की खिदमत करते और वहीं रहते, यहाँ मारे जाने, रेगिस्तान में मारे जाने। लेकिन फिर क्या होता है, खुदावंद से यही कहता है कि खुदावंद मूसा उनसे कहता है खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा और तुम खामोश रहेगी। और मूसा वहां क्या करता है, खुदावंद से फरियाद करता है, खुदावंद से दुआ करता है। लेकिन फिर क्या होता है, खुदावंद से कहता है तू क्यों मुझसे फरियाद करता है, तू अपनी लाठी को उस पानी पर मार, और वो पानी क्या होता है, 2 हिस्से हो जाता है। और जब ये ऐसा मुआजिज़ा है जिसे देखें कि आम बंदा सोने के सेंस में यह किस तरह हो गया, पानी किस तरह, बड़ा समंदर किस तरह 2 हिस्से हो गए, इतना बड़ा समंदर किस तरह 2 हिस्से हो सकता है, किस तरह हो गया होगा, किस तरह दरमियान में से खुश्की आ गई कि वो दरमियान में से उस बनी इस्राइल उसमें से निकलकर दूसरी तरफ चले गए, पानी को पार करके दूसरी तरफ चले गए। लेकिन जब उस खुदावंद को, उसका जलाल बड़ा है, उसका फजल बड़ा है, जब वो करना चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ों को हिला सकता है, वो पहाड़ों को हिला सकता है। वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, वो कैंसर से, एड्स से, हर तरह की बीमारियों से हमें शिफा दिला। हालेलुया। वो चाहे हमारी रुकावटों को दूर, जब हमारे सामने चाहे पहाड़ आ जाए, बड़े बड़े समंदर आ जाए, वो हमारी रुकावटों को क्या करता है, दूर कर देता है। वो हमारे तमाम जुए बंधन तोड़ देता है। हमें सिर्फ उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत होती है कि ऐ खुदावंद, हम तो तुझसे फरियाद करते हैं, तू हमारी दुआ को सुन। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई हमारा आसरा नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ने हमें छोड़ दिया है, हम तुझसे फरियाद करते हैं। बेशक हम मुसीबत में, परेशानी में हैं, बेशक हमने खुशहाली में तुझसे फरियाद, तुझसे दुआ नहीं की, तेरी शुक्रगुजारी नहीं की, लेकिन अब हम खुदावंद अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं कि हमने तुझसे उस दौर में जब हमें तेरी शुक्रगुजारी करनी चाहिए थे हमने नहीं की, हम तुझसे फरियाद करते हैं। वो उन बातों को भूल जाता है, वो हमारे गुनाहों को भूल जाता है, वो हमारे गुनाहों को भूल जाता है और हमारी उस ईमान को देखता है जिस वक्त हम उससे दुआ कर रहे होते हैं। उस ईमान को देखता है और वो हमारी दुआ को सुनता है और उस परेशानी से हमें निकालता है। हालेलुया। और उसके जलाल के सामने ये कुछ नहीं है, ये बीमारियां कुछ नहीं है, परेशानियां कुछ नहीं है, मुसीबतें कुछ नहीं है, रुकावटें कुछ नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है, सब कुछ उसके इख्तियार में, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम बीमार हो, वो नहीं चाहता कि हम मुसीबतों में पड़े, हम आजमाइशों में पड़े। हम अपने गुनाहों को, गलतियों, खुताओं की वजह से आजमाइशों में और परेशानियों में पड़ते हैं। बाज़ औक़ात हमें शैतान आजमाता है, बाज़ औक़ात हम अपने गुनाहों की वजह से मुसीबतों की परेशानी में पड़ जाते हैं और हम आजमाइशों में पड़ जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम इन आजमाइशों से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम उसी पर ईमान रखें। मुसीबत में, बीमारी में, हर हाल में खुदावंद पर ईमान रखें। खुशहाली में भी उसी पर ईमान रखें कि खुद जो कुछ दिया है खुदावंद तूने मुझे दिया है। अपने आप पर ये ना सोचें कि ये सब मेरा दिया हुआ है, ये मैंने मेहनत की और मैंने ये कमाया है।
जो कुछ वो देता है वो लेना भी जानता है। अगर कोई इंसान ये कहे ना यार ये मेरा कमाया हुआ सब कुछ मैंने, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर खुदावन देना जानता है वो वापस भी ले सकता है। इसलिए ना अगर आपके पास बहुत कुछ है ना उसका गरूर करें, अगर कुछ नहीं तो ना उसका कभी गिला भी ना करें। खुदावन से उम्मीद लगाए रखें, खुदावन से उम्मीद लगाए रखें, उस पर ईमान रखें कि आने जाने उम्मीद ही ऐसी चीज़ है ना, उम्मीद ऐसी चीज़ है जो आपको खुश रखती है। उम्मीद ही एक, आप सोचे कि ईमान जो है उम्मीद की किस्म है ना। ईमान जब रखते हैं तो हम खुदावंद से ये तवक्का करते हैं कि खुदावंद ही हमें ये चीज़ें, अगर मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ और मैं खुदावंद से उम्मीद करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ही मुझे शिफा देगा, मेरी परेशानियों को दूर करता है, तो वो उम्मीद होती है कि खुदावंद ऐसा कर देगा, और वो उम्मीद हमें खुशी देती है। ऐसा होता है कि बाज़ हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ऐसा कर दे तो कैसा होगा, तो हम वो खुशी महसूस करते हैं, और वो खुशी है वो हमें तसल्ली इत्मीनान बख्शती है। वो ईमान ही है जो हमें इस तरह का इत्मीनान तसल्ली बख्शता है, क्योंकि उसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। कहते नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रंट ऑफ गॉड। खुदावंद के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके जलाल के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ किया होता है, बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं कि हमें पता नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कोई हादसा होने वाला होता है और उसने हमें बचाया होता है। हमें पता नहीं होता हमारी दुआओं के वसीला से, हमारे ईमान के वसीला से हमें हमारे टाइम आगे पीछे कर दिया हो और हमें उस परेशानी से निकाल लिया हो, हमारे आने जाने का वक्त चेंज कर दिया और हमें उस परेशानी से निकाल दिया। इसलिए ना उस पर कभी किसी भी चीज पर, उस पर हमेशा भरोसा ईमान रखना, उम्मीद लगाना, उसी से बेहतर वही है जिस पर उम्मीद लगाते हैं, उसी पर ईमान रखते हैं। ना तो किसी चीज पर हम गरूर कर सकते हैं और ना ही हम कहते हैं कि गिला कर सकते हैं उससे, क्योंकि जो कुछ है उसी की मर्जी से है और जो कुछ वो कर सकता है उसी की मर्जी से होना है। अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो जरूर करेगा, अगर वो नहीं करना चाहता हमारी जिंदगी में तो वो लाख कोशिश भी कर ले हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ दुआ करके उससे उम्मीद लगाते हैं और हम भरोसा करते खुदावंद तू ऐसा करेगा मेरी जिंदगी, और वही उम्मीद जो ईमान है वो हमारी चेहरे को रौनक भी बख्शता है, हमारी जिंदगी के अय्याम को भी बढ़ाता है और हम खुश भी रहते हैं। अगर हम अपने आप पर अगर कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं जिंदगी में, हम गिला करते हैं खुद से, तो वो हमारी जिंदगी में एक चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आइए कलाम का 10वें से आगे देखते हैं। रोमियो 8 बाब उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 18 आयत। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। मेरी दानिश में, मेरे ख्याल में, मेरी सोच में इस जमाना के दुख इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबले हो सके जो हम पर जलाल हो। उसके जलाल के मुकाबले कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख जो भी है, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए वो उसके जलाल के मद्दे मुकाबल नहीं हो सकती, जलाल के मद्दे मुकाबल नहीं हो सकती। वो चाहे तो वो कहते हैं कि आग की भट्टियों में से भी निकाल लेता है, वो शेर की गार में से जिंदा निकाल लेता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो वो मुर्दों में से जिंदा भी हो सकता है, वो चाहे तो दूसरे मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो चाहे तो कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, वो चाहे तो कहते हैं कि वो
बदरू गिरफ्तार में से बदरूहों को निकाल सकता है, हर काम वो कर सकता है, वो कोड़ियों लंगड़ों को चला सकता है। कोई भी ऐसा दुख नहीं है, कोई भी हमारी जिंदगी की तकलीफ परेशानी नहीं है जिससे वो शिफा नहीं दे सकता है। उसका जलाल बड़ा है, उसको मानना सीखें, उसके जलाल को देखें कि वो क्या कर सकता है हमारी जिंदगी। अपनी परेशानी को और दुखों को ना देखें, उसके जलाल को देखें कि वो कर क्या सकता है। अगर नहीं कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो इसमें शायद या हमारी कमी है या फिर उसकी मर्जी नहीं है कि हम जो वो चाहता है वैसा ही होगा। इसलिए उसे दुआ करके उससे उम्मीद लगाएं कि वो ऐसा होगा, और हमेशा खुशी महसूस करके खुदावंद हमारी जिंदगी में ये काम करेगा। उसका जलाल हमेशा बड़ा है, उसका जलाल के हमारी कोई भी बीमारी या परेशानी या तकलीफ या दुख या हर किस्म हर चीज को वो सब, उसका जलाल सबसे बड़ा है। हर बीमारी को वो खत्म कर देगा, हर परेशानी को वो खत्म कर सकता है, हमारी बेरोजगारी को वो खत्म कर सकता है, हमारी भूख को वो मिटा सकता है। अगर हम बेघर हैं वो हमें घर दे सकता है, अगर हम नंगे हैं तो वो कपड़े दे सकता है। हर चीज जो है, अगर हम दुख दर्द तकलीफ परेशानी में तो वो हमें खुशहाल कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है, सिर्फ उस पर ईमान रखने की जरूरत है। अगर ईमान है, अगर वो खुशहाल कर सकता है, अगर खुशहाल कर सकता है तो वो इंसान को कहते हैं कि बदहाल भी कर सकता है। अगर बदहाल कर सकता है तो खुशहाल भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। हम अपनी अपनी जिंदगियों को उसके सामने रख के देखें, क्या क्या हमने अपने आप को कहाँ इस चीज़ की मिस्टेक की है कि हम अपने आप को जब बिल्कुल हम बिखर गए हैं तब अपने ईमान को जाहिर करने की तब उससे दुआ की है। इससे ज़रूरी है कि इससे पहले हम दुआ करें, पहले खुदावंद अपनी मुसीबतों परेशानियों से निकलने के लिए, हटने के लिए पहले उसे दुआ करें, पहले हम उससे इल्तिजा करें, ताकि वो हमारे ऊपर से आने वाली परेशानियों को हटा दे, हमारे ऊपर से आने वाली बीमारियों को हटा दे, हमारी आजमाइशों को कम कर दे। हालेलुया। आइए कलाम का इसमें ऐसे देखते हैं, याकूब का खत उसका 5वां बाब उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि याकूब का खत 5वां बाब उसकी 16 आयत से, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए दुआ करना, किसी के दुआ के करने से भी कुछ नहीं हो सकता जब तक खुदा उनकी मर्जी ना हो, जब तक आप ईमान नहीं रखते हैं। दुआ भी तभी असरअंदाज होती है कि जब आप ईमान रखते हैं। मुसीबत में जब हम किसी से दुआ करने के लिए कहते हैं और ईमान नहीं रखते हैं, तो तब भी हमारी वो जो है, हमारा मुसीबत परेशानी से हमसे टल नहीं जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम किसी से कहते हैं कि तुम मेरे लिए दुआ करो, तो हम ईमान रखें कि जब हम हमारे लिए दुआ कर रहा है कोई बंदा, तो वो उसकी दुआ के वसीला से खुदावंद हमें ज़रूर जो है शिफा देगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा। अगर हम खुद भी दुआ करते हैं, खुद भी दिल से खुदावंद से इल्तिजा करते हैं, उससे फरियाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है दिलों गुर्दों को जानता है, वो हमारे दिल को देखता है। वो ये नहीं देखता आप कहाँ से और किस लिए दुआ कर रहे हैं, वो ये देखता है कि आप उस पर ईमान कितना ज़्यादा रखते हैं, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, आप उसके कितने बड़े फॉलोअर हैं, आपकी ज़िंदगी में उसके कलाम का क्या असर है। तो इसलिए ज़रूरी है बहनों भाइयों कि हमें चाहिए कि हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में इस तरह अपनाएं, उसके कलाम को इस तरह अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि उस पर मुसीबत परेशानी में उस पर भरोसा रखें, ईमान रखें,
दुआ करके उससे उम्मीद लगाएं और अपने अंदर एक खुशी महसूस करें कि मैंने खुदावंद से दुआ की है, वो मेरी दुआ को सुनेगा और वो मेरी मुझ पर आने वाली मुसीबतों को मुझसे टाल देगा। और उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें, उसकी ज़िंदगी के याम को फॉलो करें कि किस तरह उसने ज़मीन पर एक इंसान की शक्ल लेकर इस दुनिया में आया और अपनी ज़िंदगी गुजारी और हमें सबक दिया कि हम उसको किस तरह फॉलो कर सकते हैं और उसके कलाम को फॉलो करें। तो खुदावंद हमें ज़रूर हमारी मुसीबतों परेशानियों से निकालेगा, हमें शफा देगा और हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब पर